Hello, good morning, student. Today I will discuss about the breathing mechanism or respiration mechanism in human being. The respiratory mechanism or breathing mechanism divided in two portions for the study. First is inspiration and second is expiration. The total breathing mechanism depended on the two type of muscles. बच्चों first muscles is radial muscles and second muscles is intercostal muscles. The radial muscles are found in the diaphragm, that is a skeletal type of muscles. Then the intercostal muscles are found in between the ribs. There are two type of muscles. First is external intercostal muscles and second is internal intercostal muscles. In the breathing, the total percentage of the role of the muscles, there are 75% role of the radial muscles and the 25% role in the breathing, that is called intercostal muscles. So according to role of the muscles, the breathing also divided in two parts. First is abdominal breathing and second is thoracic breathing. What do you mean about the abdominal breathing? What do you mean about the thoracic breathing? So abdominal breathing meaning बच्चों, when the maximum role in the inspiration, which type of muscles? So if the radial muscles are contract or maximum role in the breathing by the radial muscles, so that is called abdominal muscles. When the role in the breathing, which type of muscles? The intercostal muscles if involved in the breathing, that is called thoracic breathing. The pregnant female have thoracic type of breathing, but the a well-known singer have abdominal type of breathing due to they use maximum role of the diaphragm, but the pregnant female have maximum role of the intercostal muscles. तो इन सब चीजों का बच्चों आज हम अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे कि किस टाइप से हमारे अंदर ब्रीदिंग की क्रिया हो रही है, कौन कौन सी मसल्स का इन्वॉल्वमेंट है, इन मसल्स की स्ट्रक्चर्स क्या होती है और फोर्सफुल ब्रीदिंग और नॉर्मल ब्रीदिंग में डिफरेंसेस भी क्या होते हैं, किस टाइप से है वो फोर्सफुल ब्रीदिंग है वो उसमें हो रही है, कैसे नॉर्मल ब्रीदिंग हो रही है, कौन कौन सी मसल्स है वो फोर्सफुल ब्रीदिंग कर रही है, कौन सी मसल्स है वो नॉर्मल ब्रीदिंग कर रही है. तो इन चीजों का, इन पॉइंट का हम सब स्टडी करेंगे, इन पॉइंट को यूज करते हुए. तो ये एक बहुत ही कंसेप्चुअल पार्ट है और इससे अक्सर क्या क्वेश्चन एग्जामिनर फ्रेम कर लेता है. तो हम देखते हैं, आइए एक स्लाइड के द्वारा स्क्रीन के ऊपर आप अपना अटेंशन बनाते हुए इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरह आप अंडरस्टैंड करें. आप आने वाले जो कुछ समय है अपना पूरा का पूरा जो ब्रेन, पूरा का पूरा डेडिकेशन, पूरा का पूरा जो डिवोशन है वो अपने स्क्रीन पर आप रखिएगा. तो आपके लिए ये अपने लाइफ के लिए, अपने जो मेडिकल कॉलेज तक पहुंचने के लिए एक बहुत ही उपयोगी और यूजफुल टॉपिक होगा. तो आइए हम बात करते हैं. यहाँ मैंने लिखा है या ICM है. तो देयर आर इंटरकोस्टल टाइप ऑफ मसल्स. तो इंटरकोस्टल टाइप ऑफ मसल्स वेयर इज फाउंड ऑफ द इंटरकोस्टल मसल्स. तो यहाँ ए स्पेस बिटवीन टू रिब्स, a space between two ribs is called intercostal space, in which two type of muscles are present. First is external intercostal muscles, we can said EICM, and then second is internal intercostal muscles, that is called IICM. तो इस टाइप से आप जो इंटरकोस्टल मसल्स है that is found in between the space of the ribs. So there are two type of muscles. First is in shortly form EICM and IICM.
व्हाट डू यू मीन EICM और IICM? तो इसको हम आगे डिस्क्राइब करेंगे बच्चों। फर्स्ट कह रहा है कि EICM, वेयर इज प्रेजेंट ऑफ द EICM? तो दे ओरिजिनेट फ्रॉम डोर्सल पार्ट ऑफ अपर रिब एंड इंसर्ट ऑन द वेंट्रल पार्ट ऑफ द लोअर रिब बाय द contraction in these muscles. Ribs, sternum shift upward and outward, so they help in the inspiration. तो यहाँ EICM है वो मेन रोल होता है किसके? इंस्पायरेशन में यहाँ पर मेन रोल होता है। इसमें जब कॉन्ट्रैक्शन होता है बच्चों तो क्या होगा कि अपना स्टर्नम है वो आउटवर्ड मूवमेंट करेगा, रिब्स आउटवर्ड मूवमेंट करेगी और साथ में अपवर्ड मूवमेंट भी करेगी और थोड़ी सी कैविटी का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज करने में हेल्पफुल है। तो इसको हम कहेंगे EICM के रूप में हम इसे जानते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ मसल्स है दैट इज कॉल्ड IICM, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। दे आर ओरिजिनेट फ्रॉम द डोर्सल पार्ट ऑफ द लोअर रिब एंड इंसर्ट इन द वेंट्रल पार्ट ऑफ द अपर रिब। By the contraction in these type of muscles, the ribs, sternum shift downward and inward respectively. तो ये स्ट्रक्चर ऑफ द IICM और EICM। इसको मैं थोड़ा सा एक अलग स्लाइड से मैं बता सकता हूँ कि किस प्रकार से ये मसल्स होती है। तो बच्चों हमने क्या कहा था कि जो इंटरकोस्टल मसल्स, हमारा टॉपिक है मेनली इंटरकोस्टल मसल्स। व्हाट डू यू मीन अबाउट द इंटरकोस्टल मसल्स? तो हमने कहा देयर आर टू टाइप ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स। फर्स्ट इज EICM, then second is IICM. EICM for internal intercostal muscles and IICM for external intercostal muscles, sorry, IICM for internal intercostal muscles। ये टू टाइप की मसल्स है। EICM है ये इंस्पायरेशन की में हेल्पफुल है। इंस्पायरेशन, ये कॉन्ट्रैक्ट होती है तो क्या होगा? इंस्पायरेशन होगा। IICM है वो फोर्सफुल ब्रीदिंग, ये हेल्पफुल है इन दी फोर्सफुल ब्रीदिंग, अदरवाइज ये कोई विशेष काम नहीं करती। जब हम यहां बलपूर्वक या हम कहते हैं स्टेगनेंट ब्रीदिंग करते हैं, फोर्सफुल ब्रीदिंग करते हैं, उस समय IICM फंक्शन कर रही है। अब बच्चों क्वेश्चन यहां से ये पूछा जाता है कि इस मसल्स की पोजीशन क्या है? तो आप कहोगे रिब्स के बीच में ये मसल्स उपस्थित है, प्रेजेंट है। कैसे प्रेजेंट है? तो हमने रिब्स कही थी कि 12 पेयर रिब्स हमारे अंदर प्रेजेंट है, जो 3 टाइप की है। कल एक डायग्राम के द्वारा बताया था, इसमें ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स और फ्लर्टिंग रिब्स, 3 टाइप ऑफ रिब्स है। एक रिब की जनरल समझने के लिए मैं एक स्ट्रक्चर बनाई। मान लो ये हमारे पास में एक रिब है, इसी के पास में एक सेकंड टाइप ऑफ रिब और पड़ी है यहाँ पर, ये दूसरी रिब है। क्यों अंडरस्टैंडिंग करने के लिए मैं ये डायग्राम, सिंपल डायग्राम बना रहा हूं। अब देखो इस रिब का ये डोर्सल रीजन है, इस रिब का ये वेंट्रल रीजन है, ऐसे ही इस रिब का ये डोर्सल रीजन है और इस रिब का ये वेंट्रल रीजन है। ओके, हमारे पास में 2 टाइप मसल्स है, EICM और IICM। ये मसल्स क्रॉस रूप में इन दोनों रिब्स के बीच में प्रेजेंट होती है। दोनों रिब्स है, both type of muscles are found in between 2 ribs. अब the end of part of muscles connect with the ribs. Which part? Which part meaning dorsal part or ventral part of the first rib, or dorsal part and ventral part of the second rib? तो देखिएगा
एक रिब है, इसका डोर्सल रीजन है, ये इसका डोर्सल रीजन है, यहां से ये कनेक्ट रहती है और ये फिर यहां चलती है, नीचे तक चलती है, ये एक रिब कनेक्ट रहती है। सेकेंड टाइप ऑफ रिब है, इसका ये वेंट्रल पार्ट है, यहां से कनेक्ट रहेगी और इसके यहां तक कनेक्ट रहेगी। तो दैट टाइप ऑफ पोजिशन दैट इज कॉल्ड क्रॉस पोजिशन। both type of muscles found in between the ribs in that type of position. The first rib that is called external intercostal muscles. Then the second muscles found in the both ribs is called internal intercostal muscles. Okay. अब क्वेश्चन यहीं से बनता है बच्चों कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है, वन एंड कनेक्ट विद द डोर्सल रीजन ऑफ द रिब्स, वन एंड इज द कनेक्ट विद द डोर्सल एंड ऑफ द रिब्स, दैट इज एज ऑफ द डोर्सल रीजन of the ribs, and the second end of the muscles connect with the ventral region of the second type of ribs, meaning EICM are connect with the dorsal of the first rib and ventral portion of the second ribs. Okay, dorsal ventral, ये यहां पर क्वेश्चन बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सेकेंड टाइप ऑफ रिब्स से IICM, वन एंड ऑफ द IICM इज कनेक्ट विद द वेंट्रल रीजन ऑफ द फर्स्ट रिब्स, देन द सेकेंड एंड ऑफ द IICM connect the dorsal region of the second ribs, meaning IICM is connect with the in between the two ribs, the first end of the ventral end of the ribs, then the second part of the muscles connect with the dorsal part of the ribs. VD connection, but AICM that is called DV connection. तो ये बच्चों आप में I hope you are crystal clear understanding, a clear understanding of the topic, and very helpful for the solving of the question in the coming exam and the practice sheet. तो इस बात को हम समझ चुके हैं, ये बात आप हम आगे देखेंगे, जब मैकेनिज्म करेंगे तो उसमें बहुत ही हेल्पफुल होगी ये बात। ओके, आगे चलिए हम देखिए। तो देखिएगा आप, हम बात कर रहे थे, सो इट हेल्प इन फोर्सफुल एक्सपायरेशन विच इज वॉल्यूमेंट्री एक्टिविटी, सो कंट्रैक्शन ऑफ IICM इज अंडर द कंट्रोल ऑफ सेरिब्रम। IICM है वो हेल्पफुल है किसमें, फोर्सफुल ब्रीदिंग में। फोर्सफुल ब्रीदिंग का मीनिंग फोर्सफुल एक्सपायरेशन में हेल्पफुल है, और उस समय ये अंडर कंट्रोल रहता है, सेरिब्रम के अंडर कंट्रोल है, वो यहाँ पर फंक्शन करता है। इसका मीनिंग ब्रीदिंग की क्रिया इनडायरेक्टली सेरिब्रम है वो भी कंट्रोल कर रहा है। देन द मैकेनिज्म ऑफ द ब्रीदिंग, इसमें एक यहाँ पर पल्मोनरी वेंटिलेशन यहाँ पर बताया गया है एक, कि किस प्रकार से पल्मोनरी वेंटिलेशन होता है। तो आपके सामने एक ब्यूटीफुल स्लाइड दिखाई गई है जो एक साइकिल को यहाँ पर शो कर रहा है। तो ब्रीदिंग मैकेनिज्म होती है, तब आप देखिएगा बच्चों, जो एनवायरमेंटल प्रेशर है 760 mmHg, ओके, इस प्रेशर को हम कहेंगे एनवायरमेंटल प्रेशर ऑफ द गैसेज। नॉर्मल रेस्टिंग स्टेज होती है तो लंग जो प्रेशर है उसका प्रेशर भी 760 mmHg होगा।
ये प्रेशर कौन सा होगा? लंग प्रेशर। तो लंग प्रेशर और एनवायरमेंटल प्रेशर बोथ आर सेम ड्यूरिंग रेस्टिंग स्टेज। ड्यूरिंग रेस्टिंग स्टेज एक ब्रीदिंग वेंटिलेशन, एक ब्रीदिंग साइकिल की स्टडी हम यहां पर करें तो यहां आप बता सकते हो कि एनवायरमेंटल प्रेशर और ये प्रेशर दोनों क्या है? रेस्टिंग स्टेज में सेम है। अब देखिए बच्चों, जो हमारे लंग्स है, ये हमारे लंग्स है, यहां हम जनरली समझने के लिए हम बता सकते हैं कि दैट इज कॉल्ड लंग्स। इनसाइड ऑफ द लंग्स ए प्रेशर डेवलप होता है, इस प्रेशर को कहते हैं इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। तो इन लंग्स ड्यूरिंग रेस्टिंग स्टेज द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज 760 mmHg। द आउटसाइड ऑफ द लंग्स, ये जो लंग्स के बाहर की साइड में जो थोरेसिक कैविटी है, इस प्रेशर को हम कहेंगे इंटर पल्मोनरी प्रेशर। इन दो प्रेशर के बारे में आप ध्यान रखें। इनसाइड ऑफ द लंग विच टाइप ऑफ प्रेशर डेवलप, तो दैट इज कॉल्ड इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। द आउटसाइड ऑफ द लंग इन द थोरेसिक कैविटी विच टाइप ऑफ फंक्शन, which type of pressure will develop? आंसर होगा यहां पर that is called interpulmonary pressure. Okay. During inspiration, the intrapulmonary pressure will be decreased. During inspiration, the intrapulmonary pressure will decrease. How many degrees? 1 to 3 mmHg pressure will be decreased. ये ध्यान रखें। How many pressure will be decreased? तो 1 to 3 mmHg pressure will be decreased in the lungs. So the environmental gases come into the lungs. Then during expiration, 1 to 3 mmHg pressure will be increased, so the lungs air come out, the lungs air come from the lung and exhalation to the environment. तो ये क्यों होता है कि यहां पर ये प्रेशर इंक्रीज हो गया। इस समय डायफ्राम की का शेप भी चेंजेज होता है। तो इस साइकिल के द्वारा हम बता सकते हैं कि नॉर्मल जो ये बताया गया, एक तरफ एटमॉस्फेरिक के जो प्रेशर है वो 760 mmHg है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहां पर भी 760 mmHg आपके पास में दिखाया गया है। ये यहां पर लंग्स है, इनसाइड ऑफ द लंग्स, दैट इज कॉल्ड इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, आल्सो नोन एज एल्वियोलर प्रेशर। ड्यूरिंग रेस्टिंग स्टेज हाउ मेनी प्रेशर? 760 mmHg प्रेशर फाउंड इनसाइड ऑफ द एल्वियोलाई और लंग्स, दैट इज कॉल्ड इंट्रापल्मोनरी प्रेशर एट द रेस्ट। ओके, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, at the rest, the diaphragm is dome shaped. ये dome shaped है। During inspiration, when the gases, environmental gases are inhaled by the conducting zone from the nasal chamber and bronchial tree and respiratory tree, the gases come into alveoli. In that time, the pressure will be decreased. How many pressure will decrease? 1 to 3 mmHg. तो यहाँ दिखाया गया है कि
2 mmHg pressure will be decreased during the inhalation. The pressure of alveoli is 758 mmHg and the diaphragm become flat during inhalation due to the contraction of the radial muscles. The pressure are decreased. How many decrease? 1 to 3 mmHg decrease. That type of breathing known as a negative pressure breathing. In the human, the breathing is a negative pressure breathing. Then the next stage, the atmospheric pressure is 760 mmHg, but inside of the lungs or alveolar pressure are increased. How many increase? 2 mmHg pressure will increase. Then alveolar pressure is 760 plus 2 is equal to 762 mmHg. Due to high pressure in the alveoli in the lungs, the gases are expelled from the lungs to the environment. According to rule, the gases always transport high pressure to low pressure. And the diaphragm is a relaxation during exhalation to come back in dome shaped from flat diaphragm. वापिस यहाँ पर डोम शेप्ड हो जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड ब्रीदिंग साइकिल. तो इस टाइप से ये एक साइकिल के द्वारा हम इस चीज को डिस्क्राइब कर सकते हैं. तो दैट इज कॉल्ड पल्मोनरी वेंटिलेशन और ब्रीदिंग साइकिल. अब यहां पर हम बात करें मैकेनिज्म ऑफ द ब्रीदिंग, हाउ टू ब्रीद, हाउ टू इंस्पायर, हाउ टू एक्सपायर ऑफ द एयर from lung to atmosphere, or how to inspire of the air from environment to lungs. What is process? What is changes found in the muscles like radial muscles or intercostal muscles? ये सब बातें हम यहाँ पर पढ़ेंगे बच्चों. There are two type of mechanism found for the breathing. First mechanism is inspiration, then second mechanism is called expiration. The normal breathing is the term used. Eupnoia is equal to normal breathing. Equal to or dyspnea या डिस्नोइया, इसकी बात भी हम कर दी. डिस्नोइया का मीनिंग है दैट इज पेनफुल ब्रीदिंग. और पेनफुल ब्रीदिंग कब होती है? व्हेन द प्लूरसी विल बी डेवलप, देन द ब्रीदिंग इज पेनफुल. द कंडीशन नोन एज अ डिस्नोइया. तो इस प्रकार से हम यहाँ कुछ बीच बीच में ऐसे टर्म भी यूज करते रहेंगे, क्योंकि इसके क्वेश्चन भी कई बार यहाँ से कर लेते हैं, पूछ लेते हैं यहाँ. अब इंस्पायरेशन क्या होती है, एक्सपायरेशन क्या होता है, इसको हम यहाँ पर एक स्लाइड के द्वारा, एक स्क्रीन के द्वारा हम समझेंगे कि मैकेनिज्म है, रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म है, उसमें फर्स्ट मैकेनिज्म इज इंस्पायरेशन. इंस्पायरेशन. और सेकंड मैकेनिज्म है, इसको कहेंगे अपन एक्सपायरेशन. सेकंड मैकेनिज्म इज एक्सपायरेशन. ओके. अब देखिए इंस्पायरेशन में समय जो लगता है इसको हम कहेंगे नॉर्मल स्टेज में 2 सेकेंड, और एक्सपायरेशन में जो समय लगता है
वो टाइम होता है हमारा 3 सेकेंड है। तो टोटल जो ब्रीदिंग के अंदर टाइम लगता है वो 5 सेकेंड। एक ब्रीदिंग में टोटल टाइम यूज कितना? 5 सेकेंड। वन ब्रीदिंग मीनिंग वन इंस्पायरेशन प्लस वन एक्सपायरेशन इज इक्वल टू वन ब्रीदिंग। इस बात को आप ध्यान रखिए। वन ब्रीदिंग मीनिंग वन इंस्पायरेशन प्लस expiration is equal to one breathing. In the inspiration the 2 second time and in expiration 3 second time है वो लगता है, और टोटल एक ब्रीदिंग में 5 सेकंड का टाइम लगता है। आप यहां पर निकाल सकते हो बच्चों 1 मिनट में हाउ मेनी टाइम ऑफ ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग का जो टाइम है वो अपन निकाल सकते हैं कि यहाँ 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, और यहाँ पर एक ब्रीदिंग में 5 सेकंड का टाइम लगता है। तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा 12 टाइम यहाँ पर ब्रीदिंग 1 मिनट, 12 टाइम पर मिनट, ये आपका आंसर हो जाएगा। एग्जैक्ट आंसर आपका हो जाएगा 12 टाइम। बट ब्रीदिंग जो बच्चों ये ध्यान रखना है ये फिक्स नहीं होती है, ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, अकॉर्डिंग टू थॉट चेंजेज होती रहती है। इसलिए इसको एवरेज माना गया है कि 12 to 16 टाइम पर मिनट। हमारे अंदर ब्रीदिंग 1 मिनट में कितनी बार ब्रीदिंग होती है? तो आंसर होगा 12 to 16 टाइम पर मिनट ब्रीदिंग की क्रिया होती है। 16 टाइम हम इंस्पायरेशन कर लेते हैं 1 मिनट में, और 16 टाइम क्या कर लेते हैं? एक्सपायरेशन कर लेते हैं। क्लियर पॉइंट यहां पर, ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। इसके बाद में और देखें, अब हम यहां पर बात करें कि एक्चुअल में इंस्पायरेशन होता क्या है। इंस्पायरेशन का मीनिंग है यहां पर है कि इनहेलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज फ्रॉम environment. During inspiration the pressure 1 to 3 mmHg will be decreased. सेकेंड पॉइंट आप ये ध्यान रखेंगे। थर्ड पॉइंट आप क्या ध्यान रखोगे कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द मसल्स ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, व्हाट टाइप ऑफ मसल्स इन्वॉल्व इन द इंस्पायरेशन। तो दैट इज there are 2 type of muscles are involved in the inspiration. First is radial muscles. First muscles is radial muscles. Second muscles is external intercostal muscles. External intercostal muscles. ओके, देयर आर 2 टाइप ऑफ मसल्स इन्वॉल्व इन द इंस्पायरेशन। ये बात आप ध्यान रखें, क्वेश्चन यहां से फ्रेम किया जा सकता है कि विच मसल्स आर इन्वॉल्व इन द इंस्पायरेशन। आपका आंसर क्या होगा? रेडियल मसल्स और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स आर इन्वॉल्व इन द इंस्पायरेशन। व्हाट इज द चेंजेज ड्यूरिंग इंस्पायरेशन इन द रेस्पिरेटरी बॉक्स और लंग्स एंड लंग्स। तो ये हम चेंजेज देखेंगे। तो चेंजेज यहाँ कई टाइप के चेंजेज होते हैं। देन नेक्स्ट स्लाइड इज, तो आप देखिएगा इंस्पायरेशन जो हो रहा है, फर्स्ट चेंजेज कहां होता है? डायफ्राम के अंदर, इन डायफ्राम। फर्स्ट चेंजेज बाउंड इन द डायफ्राम। व्हाट चेंजेज बाउंड इन द डायफ्राम? तो या इंस्पायरेशन कहां से स्टार्ट होती है? तो आप कहोगे द रेडियल मसल्स विल कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो फर्स्ट इवेंट
of the inspiration, the radial muscles will be contract. Then what changes in the diaphragm? That dome shaped diaphragm, the dome shaped diaphragm change into flat diaphragm. क्या हुआ? डोम डायफ्राम था, किसमें कन्वर्ट हो गया? फ्लैट डायफ्राम में कन्वर्ट हो गया. द फर्स्ट चेंजेज इन द डायफ्राम. जब डोम शेप्ड डायफ्राम था, फ्लैट में चेंजेज हुआ, तो इससे क्या इफेक्ट आया? इससे इफेक्ट आया थोरेसिक कैविटी वॉल्यूम will increase. Thoracic cavity volume will increase. So intrapulmonary pressure डिक्रीज. कितना डिक्रीज हुआ? 123 mmHg. इंट्रापल्मोनरी प्रेशर विल बी डिक्रीज. इंट्रापल्मोनरी प्रेशर बच्चों यहां पर जैसे ही डिक्रीज हुआ तो प्रेशर ऑन लंग्स, नेक्स्ट पॉइंट हम क्या कहेंगे? प्रेशर ऑन लंग्स ऑल्सो डिक्रीज. प्रेशर ऑन लंग्स है वो यहां पर फिर डिक्रीज हो गया. या अब यहां बच्चों ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि रेडियल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो रहा है. किस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है? तो आप कहोगे डोर्स या एंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन. एंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन है. ये क्वेश्चन कई बार फ्रेम किया गया है, पूछा गया है कि जब रेडियल मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, व्हेन द रेडियल मसल्स विल बी कॉन्ट्रैक्टेड द thoracic cavity volume are increase. which type of डायरेक्शन? विच डायरेक्शन? तो आंसर होगा एंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन है. वॉल्यूम विल बी इंक्रीज व्हेन द रेडियल मसल्स विल बी कॉन्ट्रैक्ट. कैसे, क्यों होता है ऐसे? तब हम यहां पर स्ट्रक्चरली देखते हैं कि हमारे पास में क्या था. हमारे पास में ये स्थिति है, सपोज करो ये यहां पर वर्टिकल कॉलम है. इस वर्टिकल कॉलम के अंदर ये यहां रिब्स है लेटरली, और डोर्सल पार्ट में यहां पर वर्टिकल कॉलम है, और वेंट्रल पार्ट है इसके अंदर यहां पर स्टर्नम है. अब यहां स्टर्नम है. स्टर्नम क्या था आपके पास में? पहले ये कंडीशन थी, ये स्टर्नम है अपना. ये स्टर्नम कैसा है? जब रिलैक्स में होता है, तो रिलैक्स स्टर्नम है. अब इसके बाद में क्या हो रहा है? हम कह रहे हैं इंस्पायरेशन कर रहे हैं. इंस्पायरेशन कर रहे हैं तो स्टर्नम यहां पर रेडियल मसल्स है, इसमें रेडियल मसल्स विल बी कॉन्ट्रैक्ट. स्टर्नम क्या हो जाएगा? यहां पर फ्लैट हो जाएगा. इस पोजीशन को हम कहेंगे स्टर्नम. जो सॉरी डायफ्राम है वो, ये कंडीशन थी स्टर्नम की, और यहां पर जो डायफ्राम है, डायफ्राम यहां पर बच्चों फ्लैट हो जाएगा. ये स्टर्नम, ये आपके पास में
वर्टिबल कॉलम है। स्टर्नम किस साइड में था? स्टर्नम था आपके यहां पर वेंट्रल साइड में, ये है डोर्सल साइड में, ये है एंटीरियर एक्सिस, ये है यहां पर पोस्टीरियर एक्सिस। हम जो बात समझने का प्रयास कर रहे हैं कि यहां बात कर रहे हैं ओनली डायफ्राम की। ड्यूरिंग रिलैक्स कंडीशन द डायफ्राम इज डोम शेप्ड, but during inspiration the radial muscles of the diaphragm will be contracted, then the diaphragm is flat। जैसे डायफ्राम फ्लैट होगा ये, तो यहां ये जो स्पेस है वो इंक्रीज होगा। पहले की पोजीशन ये थी, अब की पोजीशन ये स्पेस इंक्रीज हो रहा है। ये स्पेस किस डायरेक्शन पे इंक्रीज हो रहा है? तो आप देखिएगा ये एंटीरियर स्पेस है, एंटीरियर डायरेक्शन है, और ये पोस्टीरियर डायरेक्शन है। द स्पेस विल बी इंक्रीज एट द एक्सिस ऑफ एंटीरियर पोस्टीरियर। ये कंडीशन हो जाएगी इस प्रकार से। डायफ्राम जैसे नीचे जाएगा तो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस है वो यहां वॉल्यूम इंक्रीज कर लेगा। किसका? थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगा यहाँ। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द नीट एग्जाम। ड्यूरिंग डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन है वो किस दिशा में, किस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है। तो हम यहाँ पर समझ चुके हैं बहुत अच्छी तरह कि एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में ये जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो रहा है। जैसे ही वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो यहां पर बच्चों क्या पड़े हैं? फेफड़े पड़े हैं। ये यहां इसके ऊपर से 1 2 3 mmHg प्रेशर है वो डिक्रीज हो गया है। यहां पर नेगेटिव प्रेशर रहेगा और नेगेटिव हो गया, डिक्रीज हो गया, इसलिए हम कहते हैं इसे नेगेटिव ब्रीदिंग। इस ब्रीदिंग का नाम दे दिया गया नेगेटिव ब्रीदिंग। तो ये पोजीशन है कब? During inspiration, the changes in the diaphragm, when the changes in the diaphragm, so after the contraction of the diaphragm, the radial muscles are contracted in the diaphragm, and then many changes are found in the thoracic cavity and lungs. That type of changes known as inspiratory radial muscles changes। ओके, इस बात को हम समझ चुके हैं बहुत अच्छी तरह। एक क्रिस्टल क्लियर है, कंसेप्ट अपना क्लियर होगा, हम समझ पाएंगे तो हम ऐसे आंसर बहुत अच्छी तरह दे पाएंगे बच्चों। देन आगे क्या चेंजेज होगा? ये चेंजेज कहां हो रहा है? इस चेंजेज को हम कहेंगे ओनली डायफ्राम चेंजेज ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। किस समय कर रहे हैं हम? इंस्पायरेशन के समय कर रहे हैं। अब सेकंड स्टेज जो आएगी बच्चों, आगे देखिएगा, इसके बाद में चेंजेज आर फाउंड इन दी इंटरकोस्टल मसल्स। इंटरकोस्टल मसल्स में क्या चेंजेज हो रहा है? तो देखिएगा, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स विल बी कॉन्ट्रैक्ट। कब? इंस्पायरेशन के समय। सेकेंड इंस्पायरेटरी मसल्स है ये। फर्स्ट इंस्पायरेटरी मसल्स कौन सी है? रेडियल मसल्स है बच्चों। फर्स्ट ऑफ ऑल इवेंट हो रहा है, सेकंड इवेंट हो रहा है यहां पर इंटरकोस्टल मसल्स में। ये भी साइमल्टेनियसली होता है यहां। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स विल बी कॉन्ट्रैक्टेड। क्या चेंजेज होगा इस कॉन्ट्रैक्शन से? तब देखिएगा, रिब्स मूव
अपवर्ड एंड outward as well as sternum also move to outward, then dorsal ventral volume of thoracic cavity, dorsal ventral volume of thoracic cavity will be increased. So intrapulmonary pressure will be decreased and air come into the lungs from environment. The environmental partial pressure is 760 mmHg at that time, or intrapulmonary pressure is 757 to 758 mmHg pressure. So the intrapulmonary pressure are decreased or environmental pressure is higher. So due to higher pressure, the environmental gases transport into the body by the nasal chamber, nasal path and respiratory tree. इस टाइप का चेंजेज बच्चों का होता है जब इंटरकोस्टल मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है. इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगी. यहां पर कौन सी इंटरकोस्टल मसल्स है? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जिसे EICM के नाम से भी जानते हैं. दैट इज कॉल्ड EICM. EICM भी इसे कहते हैं. तो ये मसल्स जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होगी तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यहां रिब्स मूव करेगी. एक तो अपवर्ड मूवमेंट करेगी और एक आउटवर्ड मूवमेंट करेगी. अपवर्ड और आउटवर्ड का मीनिंग क्या है? यहां जैसे ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है तो थोड़ी सी तो पहले अपन जैसे श्वास लेते हैं तो अपवर्ड, और फिर यहां पर बाहर की तरफ ये रिब्स है इस प्रकार से आउटवर्ड मूवमेंट यहां पर करती है. तो इससे स्टर्नम भी क्या होगा? आउटवर्ड मूवमेंट करेगा, और जिससे थोरेसिक कैविटी वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, और ये वॉल्यूम है वो क्या करेगा? इंट्रापल्मोनरी प्रेशर को डाउन कर देता है यहां पर, और जिससे इंस्पायरेशन की क्रिया होती है. कैसे? यहां पर एक डायग्राम के द्वारा हम यह बता सकते हैं कि ये मान लो एक नॉर्मल पोजीशन थी. ये डायग्राम अब फ्लैट हो गया, और ये यहां स्टर्नम है, ये रिब्स है, ये यहां पर रिब्स है, और ये वर्टिब्री है. यहां कह सकते हैं इस पार्ट को वर्टिबल कॉलम, इस पार्ट को हम कहेंगे स्टर्नम. स्टर्नम है इसलिए ये वेंट्रल पार्ट है. जैसे ही यहां पर ये रिब्स कॉन्ट्रैक्ट होगी, स्टर्नम की पोजीशन हो जाएगी ये, और ये पोजीशन होने से यहां पर स्टर्नम इतना इंक्रीज हो गया, तो ये जो एरिया है इधर तो डोर्सल है और इस साइड में यहां पर वेंट्रल है, तो डोर्सल वेंट्रल वॉल्यूम इंक्रीज होता है. तो कहने का मीनिंग
इंटरकोस्टल मसल से यहाँ कॉन्ट्रैक्ट होगी, ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगी, तो इसको हम कहेंगे EICM कॉन्ट्रैक्ट होगी। तो डोर्सल वेंट्रल एक्स यहाँ एरिया इंक्रीज होगा, और यहां पर ये जो एरिया है, ये एक्सिस है, इस एक्सिस को अपन कहेंगे एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। और ये कब है, जब रेडियल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, तो ये एरिया, ये एक्सिस है, वो इंक्रीज करवाएगा। इस प्रकार से वॉल्यूम है वो एक्चुअल में बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, जिससे प्रेशर ऑन लंग डिक्रीज होगा, और कह सकते हैं कि इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा। और जैसे ये प्रेशर डिक्रीज होगा तो गैसेज है वो बाहर से अंदर की ओर आएगी। इस प्रकार से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन बनती है, इसको हम कहते हैं इंस्पायरेशन की मैकेनिज्म। और इंस्पायरेशन की जो मैकेनिज्म है कंप्लीटली, दैट इज कॉल्ड एक्टिव प्रोसेस। एक्टिव प्रोसेस, और एक्टिव प्रोसेस है इसलिए एनर्जी इसके अंदर यूज आती है। इसमें ऊर्जा क्या होगी, यूज होगी। तो इंस्पायरेशन के दौरान, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, एनर्जी है वो अपन यूज में आएगी, वहां ऊर्जा खर्च होगी ड्यू टू एक्टिव प्रोसेस। ड्यू टू एक सक्रिय अभिक्रिया है, एक एक्टिव अभिक्रिया है, इसलिए ये क्या, एक हम कह सकते हैं कि एनर्जी यूज करने वाली, कंज्यूम करने वाली प्रोसेस है। इसे बच्चों आप बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे। इसके बाद में हम यहां पर देखें कि सेकेंड प्रोसेस जो है इंस्पायरेशन और इनहेलेशन, क्या कह रहा है, जो मैकेनिज्म आती है रेस्पिरेशन की, तो इंस्पायरेशन के दौरान ये कह रहा है, एट द टाइम ऑफ द इंस्पायरेशन द कॉन्ट्रैक्शन इन डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग इंस्पायरेशन विच टाइप ऑफ मसल्स आर कॉन्ट्रैक्ट, तो डायफ्राम मसल्स और इंटरनल intercostal muscles. What type of internal intercostal muscles? तो external intercostal muscles will be contracted. Then diaphragm become flat and is pushed toward abdominal cavity. ये मूवमेंट करेगा एब्डोमिनल कैविटी की तरफ। Then sternum move toward ventral or and anterior direction. और रिब्स मूव टुवर्ड आउटसाइड एंड वेंट्रल साइड। एज ए रिजल्ट ऑफ ऑल दीज रिएक्शन द वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक कैविटी इज इंक्रीज। इसका मीनिंग इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम विल बी इंक्रीज, ये भी कह सकते हो यहां पर। देन सो द प्रेशर ऑफ द सिलोमिक फ्लूइड ओवर एंड लंग इज डिक्रीज। लंग्स प्रेशर क्या हो जाएगा यहां पर, ये डिक्रीज हो जाएगा। थोरेसिक कैविटी का इंक्रीज होगा तो हम कहेंगे ये लंग का प्रेशर हो जाएगा डिक्रीज। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज। और ये क्या था, इंटर पल्मोनरी प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप कैविटी का वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट थीम बनती है। ड्यू टू द स्पॉन्जी नेचर द लंग्स आर एक्सपेंड and as a result of this air pressure in the lung is decreased as compared to atmospheric pressure 760 mmHg 760 mmHg और लंग प्रेशर कितना यहाँ पर हो गया 757 mmHg, तो कितना यहाँ पर -3 mmHg ये डिक्रीज हुआ। तो इसको हम क्या कहेंगे, नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग कहेंगे। इसको -IP नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग के नाम से जानते हैं। नाउ एयर रसेज फ्रॉम आउटसाइड थ्रू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड फिल दी लंग्स। इस कारण एयर है वो कम इनटू दी लंग्स है, ये आएगी यहाँ पर।
देन द इंस्पायरेशन इज एन एक्टिव प्रोसेस। यहां से भी एग्जामिनर क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है। और इसमें कितना टाइम लगता है, तो 2 सेकंड का टाइम, 2 सेकंड का टाइम यहां पर लगता है। यहां से भी एग्जामिनर क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ नॉर्मली टेक अराउंड 2 सेकंड। देन ये एक सिचुएशन और बताई गई है बच्चों। इस सिचुएशन के द्वारा बताया गया है कि किस प्रकार से इंस्पायरेशन हो रहा है, किस प्रकार से एक्सपायरेशन हो रहा है। एट द टाइम ऑफ द एंट्री ऑफ द एयर एंटरिंग लंग्स, ये एयर यहाँ पर एंटर कर रही है। तो जैसे ही एयर एंटर कर रही है तो यहाँ क्या होगा, रेडियल मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो डायफ्राम मूवमेंट कर रहा है, कहा नीचे की ओर, यहाँ लोअर साइड में मूवमेंट कर रहा है, मीनिंग पोस्टीरियर साइड में मूवमेंट कर रहा है। और इसी समय स्टर्नम है वो आउटसाइड मूवमेंट कर रहा है, अपवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट कर रहा है। सो द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इज इंक्रीज। तो ये यहाँ एक पोजीशन दिखाएगी, एनसीईआरटी का ये डायग्राम है। और एज इट इज इसे स्कैन करके पूछा जा सकता है कि कौन सी एक्सपायरेशन की कंडीशन है, कौन सी इंस्पायरेशन की कंडीशन है। तो आप ये ध्यान रखें। सेकेंड है एक्सपेल एयर है, उस समय यहाँ पर डायफ्राम देखिएगा नीचे से प्रेशर लगाता है और इधर से प्रेशर लगाता है, जिससे इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम कम होता है। वॉल्यूम कम होता है तो एयर है बाहर की साइड में एक्सपेल कम कर दी जाती है, रिलीज कर दी जाती है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन एक डायग्राम के द्वारा अच्छी तरह समझा सकते हैं। इसके बाद में बच्चों देखिएगा एक्सपायरेशन की घटना क्या होती है। एक्सपायरेशन में क्या होता है, एक्सपायरेशन एक पैसिव एक्टिविटी है। फिर एक स्लाइड के द्वारा हम लें, एक्सपायरेशन है एक्सपायरेशन के समय क्या होगा, तो एक्सपायरेशन मैंने कहा एक पैसिव एक्टिविटी है। तीन सेकंड का टाइम लगता है इसके अंदर। नो कॉन्ट्रैक्शन एनी टाइप ऑफ मसल से, किसी प्रकार का कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता। रेडियल मसल्स प्लस EICM, इन दोनों मसल्स के अंदर रिलैक्स होगा, रिलैक्सेशन होगा, तो यहां पर एक्सपायरेशन की घटना होगी। सबसे पहले जो चेंजेज होगा वो डायफ्राम में चेंजेज होगा। तो डायफ्राम में क्या होगा, रेडियल, when the radial muscles will relax, then diaphragm dome शेप्ड बन गए वापिस से। कहां से बना, डायफ्राम था आपके पास में, फ्लैट डायफ्राम था, फ्लैट डायफ्राम कन्वर्ट इनटू डोम शेप्ड। तो ये सेकेंड चेंजेज आया। देन थोरेसिक कैविटी वॉल्यूम किस डायरेक्शन में, एंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन में विल डिक्रीज, ये डिक्रीज हो जाएगा। प्रेशर ऑन लंग्स, प्रेशर ऑन लंग्स इंक्रीज होगा। और ये इंक्रीज होगा, कितना इंक्रीज होगा, 1 2 3 mmHg, ये प्रेशर यहां पर इंक्रीज हो जाएगा। और गैसेज जो है एक्सपेल आउटसाइड ऑफ ए बॉडी। तो इस घटना को हम कहेंगे एक्सपायरेशन, जो कि एक पैसिव एक्टिविटी है। और ये कब, ये चेंजेस कब हो रहा है, जब रेडियल मसल्स के अंदर रिलैक्स हो रहा है। साथ में यहां पर दूसरा जो चेंजेस आएगा
सेकंड चेंजेज है वो क्या आएगा, नेक्स्ट चेंजेज आ रहा है यहां पर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल से EICM विल रिलैक्स्ड, रिलैक्स, ये जैसे ही रिलैक्स होगा तो स्टर्नम प्लस रिब्स मूव करते हैं, मूव टू इनवर्ड एंड डाउनवर्ड, इनवर्ड एंड डाउनवर्ड, देन thoracic cavity volume will decrease or will decrease, then gases expel out, gases expel out due to 1 to 3 mmHg, pressure will increase, तो कितना प्रेशर हो गया यहां पर 760 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था और ये प्रेशर हो गया यहां पर 762 से 763 प्रेशर है, mmHg प्रेशर है, वो प्रेशर यहां पर इतना इंक्रीज हो गया, इंक्रीज होने से यहां पर गैसेज क्या हो जाएगी, आउटसाइड ऑफ द बॉडी हो जाएगी है। और ये क्या है, एक प्रकार की पैसिव क्रिया है। इस प्रकार से बच्चों ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां बना। अब एक क्वेश्चन बनता है, फोर्सफुल ब्रीदिंग होती है ड्यूरिंग फोर्सफुल ब्रीदिंग, तो उस समय क्या होगा, तो ड्यूरिंग फोर्सफुल ब्रीदिंग ध्यान रखें IICM ये कॉन्ट्रैक्ट होगी और साथ में ये एक प्रकार की एक्टिव प्रोसेस है, फोर्सफुल ब्रीदिंग है वो एक प्रकार की एक्टिव प्रोसेस है। और एक्सपायरेशन जब होता है फोर्सफुल ब्रीदिंग में, तेज जोर लगा के श्वास करना, जैसे हम मान लो एक नॉर्मल तौर पे करें कि ओम की ध्वनि निकालनी है हमें, ओम, आप प्रैक्टिकली कर सकते हो, लास्ट एंड तक आप ये ध्वनि निकालोगे तो आपका डायग्राम देखिएगा, लगातार कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, लगातार कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो डीप कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, जिसे लंग्स से प्रेशर है वो निकलेगा, इसके साथ में इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है और वो क्या कर रही है, रिब्स को अंदर ले जा रही है, स्टर्नम को अंदर ले जा रही है, और जैसे ही अंदर जाएंगे तो फेफड़ों पर प्रेशर इंक्रीज होगा, और इंक्रीज होगा तो गैसें बाहर निकलेगी। ऐसी ब्रीदिंग को हम कह रहे हैं फोर्सफुल ब्रीदिंग, जो कि एक एक्टिव प्रोसेस है। ड्यूरिंग फोर्सफुल ब्रीदिंग सम स्पेशल टाइप ऑफ मसल्स आल्सो हेल्पफुल है, लाइक एब्डोमिनल मसल्स, तो एब्डोमिनल मसल्स और IICM, एब्डोमिनल मसल्स और IICM दोनों प्रकार की मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, तब एक्सपायरेशन की क्रिया होगी। एब्डोमिनल मसल्स और EICM में कॉन्ट्रैक्ट होगा तब इंस्पायरेशन की क्रिया होगी। तो इस प्रकार उदरीय श्वसन जो एब्डोमिनल पार्ट है उसकी पेशियां भी इसमें इन्वॉल्व है। तो इस प्रकार के रेस्पिरेशन को हम क्या कहेंगे, यहां पर फोर्सफुल ब्रीदिंग के नाम से जानते हैं। अब देखिए एक्सपायरेशन जो हो रहा है तो क्या क्रिया है, इसको हम पढ़ लेते हैं। नॉर्मल एक्सपायरेशन इज ए पैसिव एक्टिविटी, इट टेक अराउंड 3 सेकेंड। व्हाट इज द टाइम स्पेंड ड्यूरिंग द एक्सपायरेशन, तो आंसर आएगा इट टेक अराउंड 3 सेकेंड। एज वेल एज इंस्पायरेशन इज इट टेक अराउंड 2 सेकेंड। The complete breathing, the time take around 5 seconds.
During expiration, the relaxation in the diaphragm and external intercostal muscles take place. किस किस मसल्स में रिलैक्सेशन होता है? तो आंसर होगा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम की मसल्स के अंदर होता है. एज ए रिजल्ट ऑफ द रिलैक्सेशन, डायफ्राम, स्टर्नम एंड रिब्स अटेन देयर एक्चुअल नॉर्मल पोजीशन, due to which the volume of thoracic cavity is decreased and the pressure of the thoracic cage on lungs is increased. Thus, air which was filled in lungs goes outside through respiratory tract. Normal breathing is also called the abdominal breathing. The expiration during sneezing, coughing, and yawing is called the forceful expiration. Then it is an active process. During forceful expiration, internal intercostal muscles and abdominal muscles are contracted. When IICM contract, ribs and sternum shift downward and inward. Due to contraction in abdominal muscles, visceral organ of the abdominal cavity, pus, diaphragm, the volume of the thoracic cavity is highly decreased and the air which was filled in lungs rushes toward to the outside of the body. एक सुंदर सा एनिमेशन आपको दिखा रहे हैं, एक डायग्राम दिखा रहे हैं, वेरी ब्यूटीफुल डायग्राम ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन है, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन और ड्यूरिंग इंस्पायरेशन. दैट इज ए रिब कैज, दैट इज ए प्लूरल मेम्ब्रेन एंड द प्रेशर इन द lungs decrease and air come rushing in. The diaphragm contract and move downward and the diaphragm contract and move upward. Then the air inhalation and expiration. During expiration, the diaphragm dome shaped and ribs move inward. Then the pressure will be increased. So that type of position, it is very important position. You clear understand from the diagram, from the animation. Then next is सेम एक और डायग्राम यहाँ पर बनाया गया है. यहाँ पर देखिएगा एक ह्यूमन बॉडी दी गई है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, गैसें आ रही है, गैसें यहाँ पर जा रही है. ये एक इस प्रकार की स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाई गई है. इसमें कंटिन्यू यहाँ पर आ रही है और यहाँ पर जा रही है. तो प्रेशर यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है. ये देखिएगा प्रेशर मूव कर रहा है 752 से लेकर 755 तक ही है, तो कम हो रहा है और या इंक्रीज हो रहा है. ये डायग्राम की पोजीशन के साथ में प्रेशर है वो या चेंजेस हो रहा है. तो ये आप देखिएगा, ये कंडीशन है या लगातार इस प्रकार की कंडीशन है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है. तो ये एक अपन प्रेशर को मूव करा सकते हैं, इस प्रकार से समझ सकते हैं. इधर इस साइड में देखिएगा लगातार गैसेज जो आ रही है ये ट्रांसफर टू ब्लड एंड ब्लड से यहाँ पर वो एल्यूलाई के अंदर यहाँ बताई जा रही है. तो ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल डायग्राम है जिसे हमें यहाँ अंडरस्टैंड कर सकते हैं. येलो कलर में यहाँ पर गैसेज और रेड कलर में यहाँ पर दिखाई गई है. तो कंटिन्यू ब्लड के द्वारा ऑक्सीजन है वो यहाँ ट्रांसपोर्ट की जा रही है. तो इट इज वेरी ब्यूटीफुल डायग्राम. फिर एक ब्रीदिंग साइकिल यहाँ बताया गया. एक साइकिल के अंदर एक रिब्स कैच लिया गया है जिसमें कह रहा है ड्यूरिंग नॉर्मल क्वाइट इनहेलेशन द डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल कॉन्ट्रैक्ट, ड्यूरिंग लेबर्ड इनहेलेशन द स्टेर्नो क्लिडोमेस्टोइड एंड स्केलेंस एंड द पेक्टोरिलिस माइनर also contract. The thoracic cavity increase in the size and volume of lung expand. The alveolar pressure decrease. कितना decrease? 75 at mmHg during inhalation. During normal quiet exhalation, diaphragm and the external intercostal relax. During forceful exhalation, the abdominal
and internal intercostal muscles will be contract, then thoracic cavity decrease in the size and lung recoil and the alveolar pressure increases about 762 mmHg। तो इस प्रकार से ये एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर और लंग प्रेशर को कंपेयर करते हुए इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन को हम यहाँ पर बता सकते हैं। तो ये बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर था। मैं अब यहाँ समझता हूं कि आप बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे। समराइज में एक बार फिर आपको बता दूं कि एक्चुअल में है क्या ये ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग को बच्चों हमने ब्रीदिंग आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप, फर्स्ट इज इंस्पायरेशन एंड सेकंड इज एक्सपायरेशन। What is the changes found in the inspiration and what is the changes found in the expiration? During inspiration, the radial muscles and external intercostal muscles will be contracted. So the diaphragm, dome-shaped diaphragm change into the flat diaphragm and the anterior posterior thoracic cavity volume will be increased but intrapulmonary pressure will be decreased. How many intrapulmonary pressure will be decreased? So 1 to 3 mmHg intrapulmonary pressure will be decreased, and in between the ribs found a special type of muscles that is called intercostal muscles. During inspiration, the external intercostal muscles will be contracted. So the sternum and ribs move outside of the body and also upward of the body. Then the dorsal ventral axis volume will be increased. Overall, the volume of thoracic cavity will be increased, so the pressure on the lungs will be decreased. Intrapulmonary pressure also decrease. So the environmental gases, rushes come into the lungs due to low pressure, due to negative pressure, that is called negative breathing. During expiration, the radial muscles and external intercostal muscles will be relaxed. So the flat diaphragm change into the dome diaphragm and the sternum and ribs move inward and downward. So the thoracic cavity volume will be decreased and the pressure on the lung will be increased, and also intrapulmonary pressure will be increased. So inside of the lungs, when the air fill during the diffusion, that type of air come out from the lungs to the environment. How many pressure will be increased? 1 to 3 mmHg pressure increase compared to the environmental pressure. So that type of cycle found in body, that is called breathing cycle or respiratory cycle. तो बच्चों मैं जहां तक समझता हूं इसे आप बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब देखिए फोर्सफुल ब्रीदिंग कर रहे हैं हमें, तो क्या एक्टिविटी होगी? फोर्सफुल ब्रीदिंग और इंस्पायरेशन, फोर्सफुल एक्सपायरेशन, बोथ आर एक्टिव प्रोसेस। ड्यूरिंग फोर्सफुल ब्रीदिंग, internal intercostal muscles will be contracted. It is an active process. So diaphragm में radial muscles है वो highly relaxed and the diaphragm come into the dome shaped, the pressure high pressure come into the lungs. So the maximum amount of the gases fill in the lungs which are come out from the body. तो इस टाइप से आप कह सकते हो कि फोर्सफुल जो ब्रीदिंग हो रही है उसमें जो एक्सपायरेशन हो रहा है उसमें इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स का मुख्य योगदान होता है। साथ में चाहे इंस्पायरेशन हो चाहे एक्सपायरेशन हो, यहां पर एब्डोमिनल मसल्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है। एब्डोमिनल मसल्स भी उस समय कॉन्ट्रैक्ट होती है बच्चों। तो आपने देखा होगा यहाँ कि एब्डोमिनल मसल, जैसे अब ये हमारा क्या है, फोर्सफुल ब्रीदिंग है। एक ध्वनि के द्वारा भी बताया था, उस समय
आपकी विसरल ऑर्गन की मसल्स, एब्डोमिनल मसल्स है, वो यहाँ पर फोर्स कर रही है, किस पे? डायफ्राम पर फोर्स कर रही है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लंग्स के अंदर जो एयर है वो बाहर निकले यहाँ, और ज्यादा से ज्यादा एयर अपन ले सकते हैं। तो इस टाइप की ब्रीदिंग को हम कहेंगे फोर्सफुल ब्रीदिंग। तो आई होप you are very clear, understand about the topic and very helpful for the examination, solving question in the examination and the practice sheet। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।